Good morning, students. Welcome to e-classes of standard 7th. Today I am going to teach you English subject, and we are going to see the first lesson of English subject of standard 7, that is the best Christmas present in the world. Dear students, this is a very interesting lesson actually. This lesson is revealing the true love of husband and wife for each other. What are the feelings of husband and wife about each other? Here, one lady is there. Her name was Connie. Her husband was soldier. Okay, so she was awaiting for her husband from many years. She had crossed 101 years of her life, but till now she was expecting that her husband will come and see her and they will get united again. So this is what the hope of we can say wife about her husband, and her husband was also loving too much to her. So today I will just tell you the summary of this lesson, and from next video we will see this lesson in detail. So let us start the summary. The narrator of the story went to a junk shop, सेकंड हैंड चीज़ें वगैरह जहाँ पे खरीदी जाती है, बेची जाती है, वहाँ पे, एंड परचेज अ रोल टॉप डेस्क विच वॉज इन बैड कंडीशन. तो एक रोल टॉप डेस्क रहता है जहाँ पे बहुत सारे ड्रॉवर्स रहते हैं. तो ऐसा एक ई रिपेयर अवस्था वाला जो रोल टॉप डेस्क है वो खरीदता है इस कहानी का लेखक. Okay, the narrator started its repairing on Christmas Eve and found a letter in his drawer. So what he did on the Christmas festival day, we can say on 25th December, he started to do the repair work of that roll top desk. And when he was doing his repairing work, जब वो अपना रिपेयरिंग वर्क करता रहता है तब उसको एक ड्रॉवर में एक लेटर दिखता है. He read the letter. This is not good to read other letters, but he was very curious that what would be there in this letter, and that's why through that curiosity he read that letter. It was from Jim McPherson to his wife Connie. तो जो मैकफर्सन है, जिम मैकफर्सन है, उसने अपने वाइफ को वो लेटर लिखा था. He found that Jim McPherson was the leader of England army. Leader means सेना प्रमुख. And he described that England and German were engaged in war. So there was a war between England and German. These are the countries. Okay. But on a Christmas morning a wonderful thing happened. उनके बीच में इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड की सेना और जर्मन की सेना, इन दोनों के बीच युद्ध चलता रहता है, वॉर. बट देयर वॉज अ डे ऑफ क्रिसमस. मगर क्रिसमस का दिन जब आता है तब सब अपनी दुश्मनी भूल के इंग्लैंड और जर्मन के जो सोल्जर्स हैं वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. लेट अस सी. फर्स्ट, जर्मन विशेस हैप्पी क्रिसमस टू इंग्लिश सोल्जर्स. हु विशेस फर्स्ट? जर्मन सोल्जर्स विशेस टू इंग्लिश सोल्जर्स फर्स्ट, एंड सेम रिस्पॉन्स वॉज गिवन बाय इंग्लिश आल्सो. तो जो इंग्लैंड के तरफ से जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उसका रिप्लाई किया कि उन्होंने भी बोला हैप्पी क्रिसमस. द लीडर्स शेयर देयर आइडियाज एंड फीलिंग्स विद ईच अदर एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस बाय ईटिंग, लाफिंग, टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग.
So on that Christmas day, even if there was a war, they stopped their war on Christmas day. They came together और एक दूसरे के फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ बढ़िया से ईटिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग सब बढ़िया चल रहा था उस दिन के लिए। सिर्फ अगले दिन से फिर वॉर हो जाएगा चालू। मगर इस दिन के लिए, क्रिसमस दिन के लिए उन्होंने अपना जो वॉर है वो क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। वो लेटर में लिखा था ऐसे। आफ्टर दैट दे प्लेड फुटबॉल मैच इन विच जर्मन्स वॉन। जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो, जर्मन की आर्मी जीत गए वो फुटबॉल मैच में, जो उसके बाद फुटबॉल मैच जो चली थी उनकी। इन नाइट बोथ ट्रूप्स सैंग कैरोल्स, मीन्स प्रभु जीसस जो है यीशु जी, ओके, उनके गुणगान गाए उन्होंने। एंड हैड अ पीसफुल क्रिसमस, और उस दिन इस तरह से उन्होंने बहुत ही पीसफुली, बहुत ही एंजॉइंग वे से क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। आफ्टर रीडिंग ऑल दिस थिंग्स एंड ही गेट टू नो दैट दिस जिम मैकफर्सन हैव रिटन दिस लेटर टू Connie, her wife. He thought that this letter must be given to Connie, the wife of Jim McPherson. So the author decided to give this letter back to Jim's wife. तो उसने सोचा कि ये जो मुझे लेटर मिला, ये लेटर किसको देना चाहिए, जिम के वाइफ को देना चाहिए, कॉनी को देना चाहिए। He went to address mentioned on envelope, but she was in nursing home as she got burnt in fire in her home. तो उसने क्या सोचा कि ये लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉनी के लिए, जिम के वाइफ के लिए, तो उसको वो देना चाहिए। तो एनवलप पे जो एड्रेस दिया हुआ था वो एड्रेस पे ये जो लेखक है, नरेटर है इस लेसन का, तो वो वहाँ पे जाता है। वो देखता है कि उसका घर जल गया है, और वो घर जलते वक्त वो जो कोनी मैकफर्सन थी जिम की वाइफ, वो जल गई है, इसलिए वो नर्सिंग होम में गई है। तो फिर उसको नर्सिंग होम का एड्रेस पता चल जाता है कि कहाँ पे है वो। तो ही रश टू नर्सिंग होम वेयर ही फाउंड जिम्स वाइफ। तो इसीलिए वो जिस नर्सिंग होम में जिम मैकफर्सन की वाइफ एडमिट थी, वो नर्सिंग होम में वो जाता है। ठीक है, एंड ही फाउंड जिम्स वाइफ देयर। एज शी ग्रोन टू ओल्ड इन द वेटिंग ऑफ हर हस्बैंड शी मिस्टूक द ऑथर एट जिम। तो आपको पता है जब बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी मेमोरी कम हो जाती है, उनको चीज़ों में बराबर एनालाइज करना नहीं आता, वो बहुत सी बातें भूल जाती है, इवन अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं। एंड शी हैज क्रॉस 101 ईयर्स ऑफ हर लाइफ। तो उसके वजह से उतना उसका मेमोरी स्ट्रांग नहीं था। सो व्हाट हैपन, ये जो नरेटर था उसके तरफ गया वो लेटर लेके, तो शी मिसअंडरस्टूड, उसको गलत फहमी हुई कि ये जो नरेटर है वो जिम मैकफर्सन है जो उसको मिलने आया है। See how much patience, how much love, how much eagerness this Connie has for her husband. That is what love, true love of husband wife. कि उम्र के 101 ईयर्स पे चल रही थी, वो हो गए थे, फिर भी वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी जो कि अभी तक आने को था। She declared him as best Christmas present in the world. And you know, this narrator came there in that nursing home when on the Christmas day. And that's why she declared that day as the best Christmas present in the world. Why? Because she misunderstood, she mistook that this author was a Jim. It was her illusion actually. Okay, so in this way this lesson is completed. In next video we are going to learn this lesson in detail.
This is just a introduction, we can say summary of this lesson. So this is all for today. So next we will see next video. Thank you very much. Bye.